नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आदि शंकराचार्य कृत अपरोक्ष अनुभूति है। ये पुस्तक रामकृष्ण मठ के पब्लिशिंग हाउस अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित है। अनुवादक स्वामी विमुक्तानंद जी हैं। पुस्तक जो है वो अंग्रेज़ी में है। यहाँ बैक कवर पे आप देख सकते हैं अद्वैत आश्रम पब्लिकेशन हाउस ऑफ रामकृष्ण मठ। पुस्तक का मूल्य 45 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 104 है। यहाँ बैक कवर पे कुछ जानकारी दी गई है अपरोक्ष अनुभूति के बारे में, वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ शंकराचार्य ऑन अद्वैत फिलॉसफी। द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इज द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड यूनिवर्सल सेल्फ. This identity is realized through the removal of the ignorance that hides the truth by the light of vichara or inquiry alone. To those who have neither the time nor the opportunity to go through the classical works of Shankaracharya, this book will be an invaluable guide in their quest after spiritual truth. ये पुस्तक में टेक्स्ट तो है ही संस्कृत में, फिर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, अन्वयार्थ कह सकते हैं आप, और इंग्लिश रेंडरिंग और कमेंट्स भी हैं। हर श्लोक के अगेंस्ट कमेंट्स नहीं है, व्याख्या नहीं है, मगर अधिकतर में दी गई है। श्री शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति और सेल्फ रियलाइजेशन, टेक्स्ट विथ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, इंग्लिश रेंडरिंग एंड कमेंट्स बाय स्वामी विमुक्तानंद। प्रीफेस पढ़ के मैं आपको सुना दूं। Such treatises as aim at serving as introductions to a more advanced study of a system of philosophy are generally known as Prakarana Granth. Besides giving an outline of the system, each of them emphasizes some or one or other of the main features. So, Prakarana Granth hai Aparokshanubhuti. Aparokshanubhuti is one such little manual which, while presenting a brief description of Vedanta, deals specially with that aspect of it which relates to the realization, anubhuti, of the highest truth. Such realization, unlike the knowledge of objects through sense perception or inference, is an immediate and direct perception of one's own self, which is here indicated by the word aparoksh. The central theme of the book is the identity of the Jivatman, individual self, and Paramatman, universal self. The identity is realized through the removal of the ignorance that hides the truth by the light of inquiry alone. To enable the mind to embark on such an investigation into truth, certain disciplines are laid down which are not peculiar to Vedanta but are indispensable for all such inquiries into the highest truth. The book then gives a description of one who has attained this realization and of the nature of his life. Then follows a discussion on prarabdha, the momentum of past actions, पिछले कर्मों का फल. The author contends that after realization, when ignorance with all its effects entirely disappears, the question of the survival of the body for working out prarabdha is altogether out of place, and the Shruti sometimes speaks of it only to explain to the ignorant the apparent behavior of a man of realization, who, so far as he himself is concerned, is ever immersed in the supreme truth. Verses 100 to 129 deal specially with the 15 stages through which the seeker after truth passes, which, by the way, are similar to those experienced by a Raj Yogin. But the two are entirely different. Then is the oneness of cause and effect, the absolute and the manifested universe, which is wound up with the culminating thought of the Vedanta philosophy that all that is visible and invisible is in reality the one eternal Atman, which is pure consciousness. The authorship of the book is generally attributed to Sri Shankaracharya. Even if this is disputed, the teachings are undoubtedly Advaitic. To those, therefore, who have neither the time nor the opportunity to go through the classical works of Shankaracharya, a treatise like the present one will be invaluable guide in their quest after spiritual truths. It may be mentioned here that verses 89 to 98 occur with slight variations also in the Nada Bindu Upanishad, and verses 102 to 136, 140 and 142 in the Teja Bindu Upanishad. Translations of the book into English and some Indian vernaculars have already been published, but the need having been expressed by some beginners for word equivalents and notes in English, a fresh attempt is being made to meet these requirements. The author acknowledges his indebtedness to the existing translations as well as to the commentary of Vidyaranya. It is hoped that the book will be of use to those
for whom it is intended. स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ, 10 सितंबर 1938। बहुत ही पुरानी पुस्तक है ये। यहाँ कंटेंट्स दिया गया है, अंग्रेज़ी में ही है, लेकिन जो शब्द हैं वो हिंदी में ही दिए गए हैं, स्क्रिप्ट अंग्रेज़ी है। जैसे वैराग्य, विवेक, शम और दम, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, और बगल में उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी दिया गया है। वैराग्य में डिस्पैशन, विवेक डिस्क्रिमिनेशन, शम और दम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट। फिर कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि संपूर्णतः इसी प्रकार से दिया गया है। फिर नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नेचर ऑफ इग्नोरेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड द आत्मन थ्रू इग्नोरेंस, इस प्रकार से विषय सूची दी गई है। अब इसके कुछ प्रमुख अंश मैं आपको दिखा दूं तो यह है अपरोक्षानुभूति और सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये तो वंदना है। यहाँ यह देखिए वर्ड फॉर वर्ड यहाँ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं और उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है एक एक शब्द का। फिर ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में ये 1 और 2 देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, और फुट नोट के रूप में नहीं, बट फिर वहाँ इनका यहाँ जो भी एडिशनल एक जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की या व्याख्या की आवश्यकता महसूस हुई है वहाँ दिया गया है। अब यहाँ देखिए श्लोक है, उसका ये अन्वयार्थ है, शब्द हैं उसके अर्थ हैं, फिर ट्रांसलेशन दिया गया है और फिर यहाँ कुछ व्याख्या दी गई है। अब यहाँ अपरोक्षानुभूति के बारे में कुछ दिया गया है। इट इज़ अ डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ द आत्मन विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल थॉट। एवरीबडी हैज सम नॉलेज ऑफ दिस आत्मन और सेल्फ। फॉर टू डिनाई द सेल्फ इज टू डिनाई one's own existence, but at first its real nature is not known. Later on, when the mind becomes purer through upasana and tapas, the veil of ignorance is gradually withdrawn and the self begins to reveal its real nature. The higher knowledge follows at an advanced stage, when the knowledge of self as mere witness is seen as absorbing all other thoughts. But the end is not yet reached. The idea of duality, such as I am the witness, is still persisting. It is only the last stage when the knower and the known merge in the self-effulgent Atman, which alone ever is, and besides which nothing else exists. That the culmination is reached, the realization of the non-dual is the consummation of अपरोक्षानुभूति। अब इस पुस्तक में चूंकि व्याख्या या कमेंट्स दिए गए हैं, तो जैसे अब यह श्लोक है तो यहाँ लिखा हुआ है द 4 प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशंस सच एज वैराग्य एंड द लाइक आर रिक्वायर्ड बाय मैन फॉर प्रोपिशिएटिंग हरि। तो केवल जहाँ अनुवाद है वहाँ पर अब आगे तो व्याख्या दी गई है कि वो 4 क्वालिफिकेशन क्या है, बट यहाँ पर सिर्फ वैराग्य है श्लोक में। तो आगे कमेंट में बताया गया है कि वो जो 4 क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। वैराग्य है, विवेक है, समाधि षट संपत्ति है, मुमुक्षुत्वम है। षट आदि संपत्ति जो है ये विभिन्न जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें आता है। श्रीमद् भगवद गीता की जो स्वामी राम सुखदास की साधक संजीवनी है उसमें भी 4th अध्याय में समाधि षट संपत्ति के बारे में चर्चा है और व्याख्या में है, व्याख्या में दी गई है। तो इसी प्रकार है, ये बोल्ड में संस्कृत में है, फिर नीचे अंग्रेज़ी में है, और ये छोटे फॉन्ट में जो व्याख्या और एडिशनल कमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। फिर यहाँ और ग्रंथ संबंधित जो हैं विभिन्न श्लोक हैं उनका अनुवाद है। कई जगहों पे अब यहाँ पर जो कमेंट्स हैं उसमें दूसरे ग्रंथ, दूसरे दर्शन वहाँ से कोट किया गया है। अब जैसे यह श्लोक है, तेहोहमित्ययं मूढ़ो धृत्वा तिष्ठतेहो जनः ममामित्यपि ज्ञात्वा घटदृष्ट्वे सर्वदा। How strange is that a person ignorantly rests contented with the idea that he is the body, while he knows it is something belonging to him and therefore apart from him, even as a person who sees a pot knows it is apart from him. तो यहाँ लोकायत जो चार्वाक दर्शन है उसकी चर्चा की गई है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथों की जहाँ भी श्रुतियों का, अब जैसे यहाँ है श्लोक में, स्वात्मानां शृणो मूर्ख त्वं श्रुत्या युक्त्या च पुरुषम देहातीतम सदाकारम सुदूरशदर्शम भवाद्वशे। तो यहाँ श्रुति, श्लोक में सिर्फ श्रुति लिखा गया है। तो फिर जो व्याख्या है उसमें श्रुति से, जैसे यहाँ तैत्तरीय उपनिषद से कुछ लिया गया है और फिर उसको जो भी तैत्तरीय उपनिषद में दिया गया है उसको वेदांत किस प्रकार से ये करता है, वो
वेदांत के सपोर्ट में, मतलब उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि जितने भी मत और संप्रदाय हैं उनके आचार्यों ने जो भाष्य लिखे हैं विभिन्न श्रुतियों पे, उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पे, उन सब भाष्यों का अर्थ वह इस प्रकार निकालते हैं जिससे उनके मत जो है वह स्थापित हो। तो उसी प्रकार से यहाँ भी उस श्रुति से लेकर वेदांत को स्थापित करने के अनुसार उसका अनुवाद या उसका अर्थ दिया गया है। अब यहाँ देखिए ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर मूल जो श्लोक है उसी में पुरुष सूक्त की चर्चा है। सर्वम पुरुष एवति शुक्ते पुरुष संज्ञति अपुच्यते यतः श्रुत्या कथम स्यादेह कः पुमान। The Purusha Sukta, it forms a part of Rig Veda. There we find one of the highest conceptions of the cosmic being, wherefrom this universe has emanated. The text here referred to is this. The Purusha is verily all this manifested world. He is all that was in the past and that will be in the future. He is the Lord of the abode of bliss and has taken this transient form of the manifested universe, so that the jivas may undergo the effects of their action. Rig Veda. फिर बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, विभिन्न जगहों पे लिया गया है। ये एक श्लोक है, ये कर्मकांड संबंधित इसमें कुछ लिखा गया है। और फिर उसके कमेंट में कोई एक चीज़ लिखी गई है जो मेरे समझ में नहीं आई कि किस संदर्भ में ये चीज़ लिखी गई है। अगर आपको पता हो तो अवश्य कमेंट्स में बताएं, और आगे के अध्ययन में कभी कुछ अधिक जानकारी मिली और समझ में आया मुझे ये, तो अवश्य इस पर पुनः चर्चा करेंगे। प्रोक्तो अपि कर्मकांडेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षण नित्यश्च तत्फलं भुक्तम देहपातान् दननन्तरम। Moreover, the Karma Kanda also declares that the Atman is different from the body and permanent, as it endures even after the fall of the body and reaps the fruits of the actions done in this life. तो इस प्रसंग में ये हो रहा है कि विभिन्न श्रुतियों से ये कहा जा रहा है कि भाई ये श्रुति भी कहती है कि आत्मा और देह अलग अलग है, तो यहाँ कहा है कि कर्म कांड भी ऐसा ही कहता है। मगर यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है, The Karma Kanda is that portion of the Veda which inculcates the performance of religious acts, sacrifices and ceremonies, laying down in detail rules and regulations for the guidance of its votaries. The followers of Karma Kanda do not believe in an Ishvara or God. Nevertheless, they believe in a permanent individual soul which is quite different from the body and which survives the destruction of the later as a support of Apurva. तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि followers of Karma Kanda do not believe in Ishvara or God, अब ये सही लिखी है गलत लिखी है वो मुझे नहीं पता, किस संदर्भ में लिखी गई है वो भी मुझे नहीं समझ में आया। तो ये कुछ और अध्ययन और विचार का ये विषय है। कुछ और मैं प्रसंग इसमें से आपको दिखा दूं। हाँ, अब देखिए यहाँ मूल श्लोक में ही बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा है। अयम आत्मा ही ब्रह्मैव सर्वात्मकया स्थितः इति निर्धारितम श्रुत्या बृहदारण्य संस्थया। तो यहाँ भी श्रुति की चर्चा है, मगर यहाँ किस श्रुति के बारे में कहना चाह रहे हैं, यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद से ही उसके बारे में दिया गया है। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ आ रही है जिसका आगे आदि शंकराचार्य के विभिन्न जो उनके भाष्य हैं और जो प्रकरण ग्रंथ हैं उसमें कुछ अंतर है, ऐसा यहाँ लिखा गया है और उसका कारण भी दिया गया है। अब ये जो श्लोक है, आत्मा नाम सततम जानन कालम नय महाद्युत्तते प्रारब्धम खिलम भुंजग्नोद्वेगम कर्तुम महर्षि। According to the karma theory, prarabdha is that part of our actions which through their cumulative forces has given birth to this body। ये श्लोक जो है केवल प्रारब्ध की बात कर रहा है। फिर व्याख्या में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म के बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं अगले श्लोक में। अगला श्लोक भी प्रारब्ध कर्म से ही संबंधित है। इसमें यह लिखा गया है, The theory one hears from the scripture that prarabdha does not lose its hold upon one even after origination of the knowledge of Atman is now being refuted। कह रहे हैं कि जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, आत्मा का ज्ञान हो गया है, उनके भी उस समय तक प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जिसके कारण उन्होंने जन्म लिया है और जो भी उनके जीवन में हो रहा है वह भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो इसमें यह लिखा गया है कि जो ग्रंथों में लिखा गया है कि प्रारब्ध तब भी क्षीण नहीं होता, प्रारब्ध के समाप्त होने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म जो है वो छिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ भी स्क्रिप्चर्स की चर्चा है। तो पहले तो छांदोग्य उपनिषद से कुछ लिया गया है, उसके बाद अब यहाँ शंकराचार्य जो हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में ये एक पैराग्राफ दिया गया है।
द श्रुति इन मेनी प्लेसेस हैज डिक्लेयर्ड दैट इवन अ ज्ञानी इज नॉट फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ प्रारब्ध। किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी वो प्रारब्ध से फ्री नहीं है। शंकरा हैज डेल्ट विद दिस पॉइंट एट लेंथ इन हिज कमेंट्रीज ऑन छांदोग्य उपनिषद, वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र एंड गीता। इन ऑल दोज प्लेसेस ही हैज सपोर्टेड द पॉपुलर व्यू दैट प्रारब्ध इज बाइंडिंग ऑन इवन द ज्ञानी। गीता प्रेस द्वारा ही प्रकाशित शंकर भाष्य अगर आप पढ़ेंगे और उसमें अगर मुझे ठीक याद है तो जो उदाहरण दिया गया है कि जैसे अगर एक तीर जो है वो छोड़ दिया जाए धनुष से, तो जब तक उसका मोमेंटम समाप्त नहीं होता तब तक वो रुकता नहीं है। अगर कोई पत्ता भी रास्ते में है तो उसको भेद कर भी आगे बढ़ता रहता है, जब उसका मोमेंटम समाप्त हो जाता है वह तभी रुकता है। शायद इसी एग्जाम्पल से प्रारब्ध कर्मों की जो गति है वो जब वो छिन्न हो जाते हैं तभी वो समाप्त होता है, अगर मुझे ठीक ठीक याद है। जब हम गीता प्रेस की शंकर भाष्य पे वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट हियर एज वेल as in his Vivek Chudamani, he has boldly asserted that true Vedantic view without any compromise। तो ये कहना है कि आदि शंकराचार्य ने छांदोग्य उपनिषद, वेदांत सूत्र और गीता के भाष्य में तो कहा है कि प्रारब्ध कर्म छिन्न नहीं होते, लेकिन विवेक चूड़ामणि में और अपरोक्ष अनुभूति में उन्होंने कहा, ये वेदांतिक व्यू जो है कि प्रारब्ध कर्म जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही छिन्न हो जाते हैं, वो कहा है। He has clearly shown that ज्ञानी that there is no such thing as the body and it is meaningless to say that he is any longer under the influence of prarabdha, which has no hold upon the bodiless Atman। The author brings in his argument in support of his view in stanzas 91 and 92। फिर यहाँ वो प्रारब्ध कर्म से ही संबंधित फिर इस मत के सपोर्ट में जो है वो है। अब ये फिर यहाँ देखिए प्रकृति के बारे में श्वेताश्वतर उपनिषद से है, तो विभिन्न ग्रंथों से यहाँ कोट किया गया है। प्रारब्ध के बारे में ही यहाँ चर्चा चली आ रही है। अब हाँ, अब ये एक सेक्शन है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके। यहाँ पे द स्टेप्स इन ऑर्डर आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि आप किस प्रकार से आत्मा का के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो 15 स्टेप दिए गए हैं। अब इन 15 जो स्टेप्स हैं उसमें जो अष्टांग योग की पद्धति है पातंजलि योग सूत्र में, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, वो भी हैं, लेकिन उन 8 को उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु आदि शंकराचार्य ने अपने मत से कि उनके हिसाब से यम क्या है, नियम क्या है, धारणा किसे कहते हैं आदि, यह प्रस्तुत किया है। और कहीं कहीं पढ़ के थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है जैसे कि खंडन किया है। खंडन तो नहीं कह सकते, मगर हाँ थोड़ा उसको मजाकिया ढंग से प्रस्तुत किया है कि जैसे कि नाक के ऊपर ध्यान देने से ध्यान नहीं होता है, ध्यान जो है वो ब्रह्म के बारे में चिंतन करने से उसको ध्यान कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ 2 आसन हैं योग के जिसको आदि शंकराचार्य ने जिनकी तुलना ब्रह्म से ही की है। एक सिद्धासन है और एक मूलबंध है। इन 2 श्लोकों में उसकी चर्चा है। और ये जो 15 हैं इसको फिर राजयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये आदि शंकराचार्य का आप संस्करण कह सकते हैं राजयोग का। राजयोग के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने भी एक बहुत अच्छी पुस्तक, बहुत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राजयोग के ऊपर, वह लिखी है। और चैनल पर जो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पर वीडियो उपलब्ध है उसमें उनके द्वारा जो राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के ऊपर जो उन्होंने लिखा था और जो भाषण दिए थे उसका संग्रह है, वो बहुत अच्छी पुस्तक है, वो वीडियो भी अवश्य देखें। और फिर हठ योग की भी यहाँ चर्चा आती है, मूल श्लोक में ही चर्चा आती है। Thus has been described Raj Yoga consisting of these steps mentioned above. With this is to be combined Hatha Yoga for benefit of those whose worldly desires are partially attenuated। तो राजयोग के साथ साथ हठ योग का भी इसमें ये है। तो यह है अपरोक्ष अनुभूति, अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित है ये संस्करण। एक मेरे पास गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित अपरोक्ष अनुभूति भी है, उस पर इसके ठीक बाद हम उस पर वीडियो आएगा चैनल पे। तो आशा करता हूँ आपको अपरोक्ष अनुभूति के बारे में कुछ लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।